list I am going to tell you about each and every unit, what are the important topic and what are the topic जो comprehensive exam में आ सकते हैं. You can ask me for this list. I will provide you. You can connect me at this mobile number. You can WhatsApp me for this. ठीक है. I will provide the detail contact detail in the link as well. So see, स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट नाउ सिलेबस हैज बीन डिवाइड. यदि आपने अर्लियर कभी 2012 या 13 में एग्जाम दिया होगा या अप टू 17 तक एग्जाम दिया होगा, सो वहां आपके 3 पेपर्स होते थे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3. एंड जो सिलेबस होता था वो कॉमन था पेपर 2 एंड 3 के लिए, बट इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड. इन 2018 दे हैज organize the syllabus into the 10 units. Now all 10 units have around 25 subjects. ठीक है, around 25 subjects आपके यहाँ पर है. And now remember all 10 units having equal weightage. Now equal weightage का मतलब ये है कि from each unit they will ask equal number of questions. So from the unit they will ask 10 number of questions, from the unit 2 they will ask 10 number of questions. So weightage will be equal. Now see, what are the subject is covered in the unit 1. So in unit 1 we have to cover the discrete structure and optimization, correct? So this is the important यूनिट बिकॉज इट इज स्कोरिंग. यदि आप स्पेसिफिक टॉपिक भी तैयार करके जाते हैं सो इट इज स्कोरिंग वन. सेट, रिलेशन एंड पोसेट, all these are the topic important. 2 to 3 question they will ask, definitely they will ask, and very simple level, not very much difficult. Then another important topic from this unit is the mathematical logic. ठीक है, proposition logic and the predicate logic. I would suggest go for it, don't leave these topic. And यदि आप सिर्फ discrete भी तैयार कर रहे हैं तो इतना prepare करिए. Then ग्राफ एंड ट्री. ग्राफ एंड ट्री इज अ टॉपिक जो हम डिफरेंट यूनिट में पढ़ते हैं. लाइक हम यूनिट 1 में भी डिस्कस करते हैं एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस इन unit 7, that is what data structure. So graph and tree is important because it has been the part of 2 units. So at least 2 to 3 question will be there and comprehensive question is also possible. Like tree की बात करें तो AVL tree पर आपको comprehensive question बनता है, आपको binary search tree पर comprehensive question बनता है. In the next video I will also tell you how to solve the comprehensive question, correct? So देखिए, ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस यूनिट से आप इतना प्रिपेयर करिए. फ्रॉम ग्रुप ओनली 1 क्वेश्चन विल बी देयर. देन ऑप्टिमाइजेशन सम स्टूडेंट फील इट इज डिफिकल्ट यूनिट. सो व्हाट आई विल सजेस्ट, इफ यू फील इट डिफिकल्ट देन गो फॉर द ग्राफ मेथड and all the theoretical question जो previous year में पूछा गया था, that much is sufficient. Don't spend so much time in this unit because it is lengthy one, correct? और time consuming भी होता है एग्जाम में. नेक्स्ट आपसे बात करते हैं यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 2 again 10 question they will ask. What are the important topic or what are the definite topic that they will ask is Boolean expression. At least 1 question will be there. Boolean expression, K-map, map simplification, Boolean expression reduction we can say. They will ask the numerical. Then from the digital logic they will ask the 3 to 4 question like flip flop, counter, इस तरीके के क्वेश्चन. रजिस्टर की प्रॉपर्टी, आपका मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नंबर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम. नाउ यदि सीएसओ की बात करें तो मैंने यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पुट किए हुए हैं. पाइपलाइनिंग, एंड दिस इज अ प्रोबेबल टॉपिक फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एज वेल. बहुत आराम से 5 क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होते हैं. एड्रेसिंग मोड, अगेन द प्रोबेबल टॉपिक फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव. आप ऐसे भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो यहाँ पर आना ही है. रजिस्टर ट्रांसफर मोड, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, मैक्स टू मैक्स 1 to 2 क्वेश्चन, वो भी जनरली आपके मैच द टेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. असेंबली, डेफिनेटली इट विल बी देयर. इफ यू आर कंफर्टेबल देन गो विद इट, अदरवाइज यू कैन लीव, नो इशू. ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हैं, कंपल्सरी टॉपिक नहीं है असेंबली, बट गो फॉर द कैशे मेमोरी. एंड अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इज पॉसिबल, करेक्ट? सो दिस इज अबाउट द यूनिट 2. Let me tell you, for any unit,
If you want to leave, you can leave, but go for the important topic. यदि आपको like you are targeting the 60%, 80% syllabus is sufficient to cover, but for the remaining 20% का आप important topic तैयार करिए. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए. दैट विल बी हेल्पफुल. ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा स्कोर करने के लिए. जो टॉपिक आप तैयार नहीं कर रहे हो फिर भी उनसे आप मार्क्स लोगे. ठीक है. नाउ यदि आप बात करते हैं यूनिट 3, तो यूनिट 3 को हमने डिवाइड किया है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है. तो बेसिकली इट इज प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स बेस्ड. एंड प्रोग्रामिंग से 5 to 6 क्वेश्चन पूछा जाता है और कंप्यूटर ग्राफिक्स से भी लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन थे. सो सबसे पहले जो इजीएस्ट टॉपिक है इज वेब प्रोग्रामिंग. ये आपका मुश्किल से 5 to 6 आवर्स में प्रिपेयर हो जाएगा. गो फॉर इट, डोंट लीव दिस टॉपिक. एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम द वेब प्रोग्रामिंग, जहां XML, HTML, जावा और जावा स्क्रिप्ट होगा आपका. ठीक है. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं. सी प्रोग्रामिंग डेफिनेटली 1 to 2 क्वेश्चन. Logical conceptual question will be there. These are the important topic for the C programming. Array, union, pointer, function, recursion, call by value, call by reference, file handling, preprocessor, directive X, ये सारे आपके important topic है. ठीक है. सो नाउ आपको ये सारे टॉपिक तैयार करना है. वंस यू विल प्रिपेयर दिस इन सी प्रोग्रामिंग, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक इन C++ एंड जावा एज वेल. यदि आपसे अरे पर क्वेश्चन आता है, वो चाहे C में हो, C++ में हो, जावा में, आप सॉल्व कर सकते हैं. स्ट्रक्चर C++ सेम ही बिहेव करेगा. फंक्शन सेम वर्किंग होगा, रिकर्सन सेम वर्किंग होगा. सो मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग विथ C प्रोग्रामिंग. मेरे अनअकैडमी पर अराउंड 27 लेसन C के अवेलेबल है. दैट इज कम्प्लीटली फ्री. सो यू कैन विजिट माई प्रोफाइल. आप मेरे प्रोफाइल पर विजिट कर सकते हो और वहां से कंप्लीट C को कवर कर सकते हो. एंड इफ यू नीड, यू कैन कॉन्टेक्ट डिटेल. मैं अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल आपको दूंगी, अपनी प्रोफाइल की लिंक भी दूंगी. आप उस पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, प्रोफाइल डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हैं. एंड थ्रू दैट गो फॉर द स्पेशल क्लासेस. C++ is also available at Unacademy. These are the topics. ठीक है. Inheritance, polymorphism, friend function, friend class variable, abstract class, function, call by value, call by reference, same thing. So this is what they will ask. Very easy question. थियोटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे. सो गो फॉर इट. ये अच्छा यूनिट है, इसको आप नहीं छोड़ोगे. एंड देन यदि कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करते हैं, अगेन इफ यू फील इट डिफिकल्ट, if you feel this computer graphics is difficult or time consuming, then go for some important topic like 3D transformation. थ्योरी है, पूरा थ्योरी ही क्वेश्चन पूछा जाता है. सो यू कैन प्रिपेयर दिस. लास्ट ईयर 2 to 3 क्वेश्चन थे इन सभी टॉपिक से. प्रोजेक्शन इज इम्पोर्टेंट, डोंट लीव दिस टॉपिक. इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए और उसकी प्रॉपर्टीज कर लीजिए प्रोजेक्शन के लिए. नाउ क्लिपिंग, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इज पॉसिबल, बट बहुत यदि आपको इफ यू फील इजी लाइक, देन गो फॉर इट, बट डोंट लीव. ये इंपॉर्टेंट है. ट्रांसलेशन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पॉसिबल है. वीडियो डिस्प्ले डिवाइस, ड्राइंग एल्गोरिथम, these are the 1 to 2 question they will ask max to max. recent यही पैटर्न चल रहा है. recently they are focusing on the 3D में ही आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्लिपिंग एंड योर प्रोजेक्शन. नाउ यदि यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर द डेटाबेस कॉन्सेप्ट, फॉर द एडवांस डेटाबेस कॉन्सेप्ट, फॉर द डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग. सो ऑल 10 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम हियर. एंड आई कैन से कि फ्रॉम 7 to 8 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कोर DBMS से होते हैं, जो हम कोर DBMS में हमारे PG वगैरह में कवर करते हैं. नाउ रिमेनिंग जो 2 to 3 क्वेश्चन होंगे, that will be from the data warehousing and mining, your NoSQL and big data. ये 3 टॉपिक आपके यहाँ पर कवर होते हैं. फ्रॉम दिस 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक कवर होता है. तो यस, बहुत अच्छा यूनिट है. डोंट लीव इट. इफ यू आर टारगेटिंग लाइक 80% सिलेबस, तो उस 80% सिलेबस में DBMS आपको मस्ट प्रिपरेशन करना है. इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. सो लाइक यदि DBMS की बात करें, सो normalization and referential database very important.
रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है। एंड इस पर ही क्वेश्चन आपका बनेगा फंक्शनल डिपेंडेंसी, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पॉसिबल है। ईआर डायग्राम से भी कॉम्प्रिहेंसिव पॉसिबल है। हर साल एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट विल बी देयर, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑल्सो पॉसिबल। न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करेंगे। एसक्यूएल कॉम्प्रिहेंसिव इज पॉसिबल। concurrency control technique, database recovery technique, 1 to 2 क्वेश्चन, नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, 1 to 2 क्वेश्चन। तो एक यूनिट है और एक आपका यूनिट है 5, जिससे मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंसिव बन रहे हैं। सो आई वोंट सजेस्ट टू लीव दिस यूनिट। और फिर जितने भी इनहेंस्ड टॉपिक हैं, जैसे एडवांस टॉपिक है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, डेटा वेयर हाउसिंग, माइनिंग, बिग डेटा, नो एसक्यूएल, 2 to 3 क्वेश्चन आपका इससे आएगा। बाकी पूरा आपका कोर डीबीएमएस से पूछा जाएगा, ठीक है। नाउ यूनिट 5, वेरी 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 important and scoring as well. So again 10 question will be there. So see, now you have process management. In process management, inter-process communication, critical section problem, semaphore concept, all they will ask. Then थ्रेड में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है फोक कमांड, इसकी वर्किंग हमसे बनना चाहिए, आउटपुट कैलकुलेशन बनना चाहिए। नाउ सीपीयू शेड्यूलिंग, इन सीपीयू शेड्यूलिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इज पॉसिबल, एंड इफ यू आर अनेबल टू प्रिपेयर ऑल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एटलीस्ट प्रिपेयर द राउंड रॉबिन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। एसआरजेएफ भी बोलते हैं, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये 3 तो आप प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। नेक्स्ट इज डेडलॉक, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डिटेक्शन, बैंकर्स एल्गोरिथम, करेक्ट। सो यहाँ से आपको थ्योरी आता है, बैंकर्स से आपको न्यूमेरिकल आता है, एंड बैंकर्स पर ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पॉसिबल है। एक बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आता है, वो तो हमसे बनता ही है ना। नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट, अगेन 2 to 3 इम्पोर्टेंट, टीएलबी का क्वेश्चन रेगुलर 3 साल से आ रहा है, इस साल भी आएगा। नाउ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, पेजिंग का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डिमांड पेजिंग, जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से, इन पर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपको लॉजिकल एड्रेस कैलकुलेशन, फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन, उस पर पेज टेबल का साइज कैलकुलेशन, ये सारे न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं। सो मस्ट प्रिपेयर माई all these numerical are available in the special class, हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। स्पेशल क्लास मीनिंग इज दैट फ्री क्लास एट अनअकैडमी। सो आप यदि प्लस लर्नर है, you can go for the practice, you can directly watch on the plus courses, or you can also refer the special classes. If you are not plus subscriber, then आप directly प्रोफाइल विजिट करिए एंड मेरे प्रैक्टिस सेशन को आप देखिए, ठीक है। और स्टोरेज मैनेजमेंट अगेन आपका जो डिस्क शेड्यूलिंग है उससे न्यूमेरिकल आता है, डेफिनेटली आता है। एंड डिस्क शेड्यूलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है वो है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, SHTF, एंड फ्रॉम दिस टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इज ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट इज फाइल एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम, अलोकेशन मेथड, फ्री स्पेस एंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉसिबल है, लेकिन अभी तक 1 to 2 क्वेश्चन ही पूछते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यूनिक्स सिस्टम, इनसे मैक्स टू मैक्स 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बहुत अच्छा यूनिट है, ठीक है। ऑल 10 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपने एक बार यूनिट को पढ़ा, यू कैन आंसर दोस क्वेश्चन बेसिस ऑन योर IQ, है ना। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल है बट वो भी फिक्स है कि यही न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाएंगे, तो बस उतना प्रिपेयर करिए, इस यूनिट को भी हम छोड़ने का सलाह नहीं देंगे। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर 60%, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज इम्पोर्टेंट, 60% में 80% में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करना है। Here software process model is very important. Software requirement 1 to 2 question, ठीक है। Software design, cohesion coupling is important. Software quality 1 question. FP based estimation, कोकोमो मॉडल, इनकी न्यूमेरिकल पूछते हैं, ठीक है। इनका न्यूमेरिकल आप तैयार करके जाओगे, FP का एंड कोकोमो का। कोकोमो से कॉम्प्रिहेंसिव पॉसिबल है। नाउ टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपका कॉम्प्रिहेंसिव बनता है, जो पहले ही पूछा जा चुका है ना। सो लाइक 2019 में दे हैव डिस्कस अबाउट द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। एंड हाँ, बाकी ये आपका 1 to 2 क्वेश्चन आएगा, theory based, definition based question will be there. So prepare this unit completely, don't leave any topic, Then in data structure,
Data structure, if I'm talking about the important topic, so tree and graph we have already told you. Now complexity, in complexity especially asymptotic notation is very important, and master theorem is very important. Definitely they will ask the question. ठीक है. Now PNP classes, 2 आवर्स का क्लास है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है स्पेशल में भी, फ्री क्लासेस में भी. दैट मच इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन. गो एंड प्रिपेयर इट, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है जो जरूर से ही पूछा जाएगा. सो गो एंड प्रिपेयर दिस. देन स्टेट क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू, 1 to 2 क्वेश्चन सारे टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आएगा, बाकी ऑल थ्री आर द कॉम्प्रिहेंसिव. ठीक है. सो इम्पोर्टेंट हो गया कॉम्प्लेक्सिटी, ट्री, ग्राफ, पीएनपी प्रॉब्लम. शॉर्टिंग, शॉर्टिंग एक एवरेज आप टॉपिक मान सकते हो, एवरेज टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी है भी नहीं भी ज्यादा. ठीक है. नेक्स्ट टीओसी, अच्छा यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है. इट इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स. यदि आप सॉल्व करोगे यू विल हैव 100% आंसर, और इफ यू आर जस्ट तुक्का मारते हो तो फिर चांसेस कम हो सकते हैं. ठीक है. लेकिन यदि आप सॉल्व कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल हैव द गुड स्कोर. सो डिटर्मिनिस्टिक डीएफए से आपको 1 to 2 क्वेश्चन है. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सीएनएफ, जीएनएफ, पार्सिंग स्ट्रिंग, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी ऑफ ग्रामर, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. चॉम्स्की हायरार्की से एक क्वेश्चन बनता है, बट ट्यूरिंग मशीन एंड डिसाइडेबिलिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आने वाला है. नाउ इसमें ही थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर, तो टीओसी से 7 to 8 क्वेश्चन आता है, एंड 3 to 2 क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है वो कंपाइलर से. और कंपाइलर हमको बहुत इन डेप्थ में नहीं पूछते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर फॉर द कंपाइलर. सो दीज आर द टॉपिक जो कंपाइलर में पूछे जाते हैं. नाउ unit 9 computer network, 10 question will be there. Again it have the 2 or 3 parts, basically core computer network, then mobile technology प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग. सो मोबाइल टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग से आपका 2 to 3 क्वेश्चन होगा, एंड कोर कंप्यूटर नेटवर्क से आपका 7 to 8 क्वेश्चन होगा. देखिए जो ये एडिशनल टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि कम क्वेश्चन आते तो हमको इनको प्रिपेयर नहीं करना, हमको इनको पहले प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो भी पूछेंगे वो बहुत बेसिक पूछेंगे, प्रिपरेशन टाइम भी कम होगा, एंड वी विल हैव द मार्क्स. डेफिनेटली ये आप लूज नहीं कर सकते, ये मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए. सो एक मुश्किल से 3 to 4 आवर्स में आपके टॉपिक प्रिपेयर हो रहे हैं, जैसे डीबीएमएस में भी बताया आपको, तो वो टॉपिक आपने प्रिपेयर जरूर से करने हैं. यदि कोर नेटवर्क की बात करें तो आपके जो मॉडल हैं टीसीपी, आईपी, ओएसआई, इनके लेयर्स की वर्किंग, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है. फिर नेटवर्क सिक्योरिटी से क्रिप्टोग्राफी और आरएसए वगैरह पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है. डिजिटल सिग्नेचर पर क्वेश्चन आएगा आपका. आईपी एड्रेसिंग पूछा ही जाएगा, और इस पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी बनता है. इवन आपका ये आरएसए पर भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनता है. ठीक है. डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, न्यूमेरिकल पूछते हैं, स्पीड वगैरह, इस पर कैलकुलेशन आता है. राउटिंग पर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनता है. कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा न्यूमेरिकल होता है, थ्योरी भी पूछ सकते हैं. ठीक है. तो राउटिंग से भी बनता है आपका. ओएसआई मॉडल मैंने आपको बताया. नाउ मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आईओटी, 1 to 3 क्वेश्चन विल बी देयर. कंजेशन कंट्रोल, स्लाइडिंग विंडो, न्यूमेरिकल आर पॉसिबल, एंड वर्ल्ड वाइड वेब इज इम्पोर्टेंट, है ना. सिंपल सा टॉपिक है एंड इजी टू प्रिपेयर, सो ये इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है. नाउ द लास्ट यूनिट एआई, 10 क्वेश्चन, प्रिपेयर ऑल 10 टॉपिक. ठीक है. 10 टॉपिक ही 10 है, तो ऑब्वियसली 10 टॉपिक्स है तो 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो मैथमेटिकल लॉजिकल, प्रोपोजिशन लॉजिक यहाँ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट है. आपका जो ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम्स है वो आपका इंपॉर्टेंट है. ह्यूरिस्टिक सर्च में आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ए स्टार, इनकी प्रॉपर्टी पूछा जाता है, तो इसको तो आप मस्ट प्रिपेयर करिए. ठीक है. सर्च एल्गोरिथम, इनसे तो आपका एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बनता है. फिर गेम प्लेइंग, गेम प्लेइंग इज इम्पोर्टेंट. देन प्लानिंग इज एवरेज, फजी लॉजिक इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. जेनेटिक एल्गोरिथम 1 क्वेश्चन, मल्टी एजेंट सिस्टम 1 क्वेश्चन, सो मस्ट गो फॉर इट. सो दिस इज व्हाट योर ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक, बट आई वुड सजेस्ट गो फॉर दिस यूनिट. अच्छा यूनिट है, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी
for any detail. And once again, if you are planning to join an academy, use my referral code Rashmi15 for any detail. You can contact me. अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर दिस. ठीक है, इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर एंटी यूजीसी नेट प्रिपरेशन फॉर ऑल सिलेबस. जो सिलेबस है उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट बुक्स है. Then I will tell you how what will be the strategy and how to approach the comprehensive question. I will tell you very soon. I will launch all these videos so you can find these in my profile. Correct. So thank you for your time once again, and for any query contact me. Thank you.